करता। My dear students, according to given video, I am going to explain a new concept of physics related class 10. The name of concept is reflection of light. Reflection means rebouncing. Rebouncing का मतलब होता है टकराकर लौट जाना. When a ray of light PO coming from a source of light incidence on a surface, here Mn represent a smooth surface, a plane surface. When a ray of light coming from a source of light incidence on a surface and return back after a strike, then such types of events या phenomena that's known as reflection of light. तो ध्यान देना मेरी बात को, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंस होता है और इंसिडेंस के बाद वह रिटर्न बैक होता है इन सेम मीडियम, then this phenomena is known as reflection of light. It means when a ray of light incidence on a surface and return back in same medium, then such types of phenomena या events that's called reflection of light. ध्यान देना, सोर्स ऑफ लाइट से निकलता हुआ रे ऑफ लाइट अगर किसी सरफेस से टकराता है और टकराकर लौटता है इन सेम ऑप्टिकल मीडियम, then such types of events या phenomena that's known as reflection of light. Here incidence ray PO रिप्रेजेंट इंसिडेंस रे, सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाला रे ऑफ लाइट PO है जिसको फिजिक्स में इंसिडेंस रे कहा जाएगा. आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिटर्निंग रे ऑफ लाइट OQ दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट O known as point of incidence and NO represent normal at point of incidence. So PO known as incidence ray, OQ represented reflected ray and NO normal at point of incidence. Angle between direction of incidence ray and normal, it means angle R known as angle of incidence. And angle between direction of reflected ray and normal, it means a small r angle represented angle of reflection. ध्यान देना, here Mn represent a plane mirror. प्लेन मिरर को हम लोग एक स्मूथ सरफेस के रूप में लिए हैं जिस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ है. इस प्लेन मिरर ने इस रे ऑफ लाइट को जितना एंगल से डिविएट किया, जितना एंगल से बैंड किया, ध्यान देना, अगर मिरर नहीं होता तो यह रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आगे की ओर बढ़ती, लेकिन ड्यू टू मिरर यह रे ऑफ लाइट जितना एंगल से डिविएट हुआ, मिरर ने इस रे ऑफ लाइट को जितना एंगल से बैंड किया, दैट एंगल रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. एंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू जनरल कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल डेल्टा दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस पाई रेडियन. सो अमाउंट ऑफ डेल्टा दैट्स इक्वल टू पाई माइनस I प्लस R. एंड बिकॉज I is always equal to R, so delta is equal to pi minus 2I या pi minus 2R. In term of reflection, we have given two different types of law related reflection of light. According to first law for reflection of light, direction of incidence ray PO, direction of reflected ray OQ, and normal at point of incidence NO. ऑलवेज लाइन सेम प्लेन. ध्यान देने मेरी बात को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड दो लॉ की चर्चा है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इट मींस PO, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इट मींस OQ, एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस NO. ऑलवेज लाइन सेम प्लेन. दैट्स कंसेप्ट या दैट्स स्टेटमेंट्स नोन एज फर्स्ट लॉ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. According to second law for reflection of light, angle R which represent angle of incidence and angle R which represent angle of reflection always equal to each other. किसी भी सरफेस पर जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो I और R का जो वैल्यू होगा ऑलवेज इक्वल होगा. सो
we see that when a ray of light incidents on a surface and return back in same medium, that's event known as reflection. Related reflection of light, angle I and angle R always equal to each other. Direction of incidence ray, direction of reflected ray and normal at point of incidence always lie in same plane. Next concept, formation of image in a plane mirror. ध्यान देने मेरी बात को, in given figure x dash represent a horizontal surface. Suppose that कोई टेबल है जिस पर एक mn represent a plane mirror. एक प्लेन मिरर है, ये हैच जो है मिरर का बैक सरफेस है. हम लोग मिरर को देखते हैं तो जो फ्रंट सरफेस है उसका बैक सिल्वर्ड होता है, क्ले किया होता है. ये हैच का जो साइन है सिल्वर्ड सरफेस का है. इन गिवन फिगर mn रिप्रेजेंट ए प्लेन मिरर. इस प्लेन मिरर को स्टैंड किया गया किसी टेबल पर और उसके सामने AB कोई ऑब्जेक्ट है. सपोज दैट कोई पेंसिल किसी मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस के फ्रंट है. मान लिया मिरर है, उसके सामने एक पेंसिल को स्टैंड किया गया है. हम लोग देखेंगे कि इस पेंसिल का इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा. तो हियर AB रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग एक पेंसिल को स्टैंड किए हैं मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने. सबसे पहले पॉइंट ए को लिया जाए. पॉइंट ए से सपोज दैट कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ इस प्लेन मिरर पर. तो ध्यान देना, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंस करता है, नॉर्मली इंसिडेंस का मतलब हुआ कि व्हेन एंगल I इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो इन दिस केस रे ऑफ लाइट जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम रूट से रिटर्न बैक होगा. The when ray of light incidence on a surface normally, then such types of ray of light after reflection there is no any types of changing in its route. Same case है. अगर एक ray of light इस मिरर पर normally incidence होता है तो after reflection इस तरह का ray of light जो है return back होगा same route से. इस तरह से ये जो एंगल है राइट एंगल, यहाँ से निकलने वाला फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है वह नॉर्मली इंसिडेंस किया है इस मिरर पर. आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक, चूंकि नॉर्मली इंसिडेंस है ये केस है, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस के कारण रिटर्न बैक हुआ है. एक सेकेंड रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस किया है मिरर के वो पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के रूप में वो है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस रूट से रिटर्न बैक हुआ है. और ये जो लाइन है नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को एनो के रूप में ले सकते हो आप. एनो नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो गिवन एंगल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, गिवन एंगल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. I represent angle of incidence, R represent angle of reflection. Both ray of light, यहाँ से निकलने वाला दोनों रे ऑफ लाइट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इस रूट से एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस रूट से. तो दोनों रे ऑफ लाइट जो है रियली मीट नहीं करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. ध्यान देना, यहाँ से निकलने वाला दोनों रे ऑफ लाइट जो है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रियली मीट नहीं करेगा. जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे दोनों रिफ्लेक्टिंग रे को डाइवर्ज होते चला जाएगा. अगर इस बोथ रिफ्लेक्टिंग रे को वर्चुअली बैक किया जाए, इमेजिनरी बैक किया जाए, तो दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे और यह जो पॉइंट होगा पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज कहलाएगा. तो किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रियली मीट करता किसी पॉइंट पर तो मीट पॉइंट रियल इमेज कहलाएगा. अगर वर्चुअली मीट करता है तो मीट पॉइंट वर्चुअल इमेज कहलाएगा. तो both ray of light after reflection meet at A dash virtually को इमेजिनरी कर सकते हैं. So A dash represent virtual image of point A. और यहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो इस सरफेस पर, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, then A dash B dash represent virtual image of object A. तो यहाँ पर एक इमेज जो है एक प्लेन मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट के रूप में पेंसिल स्टैंड है और इस पेंसिल का जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है A डैश B डैश के रूप में,
थोड़ा सा इमेज का अगर पोजीशन देखें आप, तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो किसी भी प्लेन मिरर के फ्रंट में यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। इमेज इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा, नॉट इन्वर्टेड, उल्टा नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक चीज और अगर देखा जाए तो यहाँ से निकलने वाला फर्स्ट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेकंड इसी सेम रूट से, सेकंड रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम रूट से। तो ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे एंड सेकंड रिफ्लेक्टिंग रे और ए डैश जो है पॉइंट ए का इमेज है। यहाँ पर हम लोग को दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल ए क्यू ओ एंड सेकंड ट्रायंगल ए डैश क्यू ओ। ए क्यू ओ एंड ए डैश क्यू ओ। यहाँ पर ए जो एंगल है राइट एंगल 90 डिग्री दोनों का एक एंगल 90 है। और ध्यान दीजिएगा अगर ए आई होगा तो ए आई होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट है। ये दोनों लाइन जो देख रहे हैं आप पैरेलल है, जिसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि ए आई होगा तो ए आई होगा, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है। इसी तरह से ए लाइन ए डैश और एनो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि ए एंगल आर होगा तो इसका corresponding pair R होगा। तो because given angle is I, so alternate angle I and given angle is R, so corresponding pair R। तो यदि A I होगा तो A I होगा और A R होगा तो A R होगा। कहने मतलब इस दोनों ट्रायंगल में A Q O और A dash Q O, इसमें आप देख रहे हैं कि राइट एंगल I, एंगल R, I and R both are always equal to each other। तो इस तरह से ट्रायंगल AQO and ट्रायंगल A'QO both are similar to each other। दोनों इक्वेटर, दोनों जो ट्रायंगल है एक दूसरे के सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। सो QA divided by QA' is equal to QO by QO। QO by QO it means 1। So QA is equal to QA'। QA रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A, मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वह QA है। तो QA मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, QA' मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल u, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल v। So in optics, in light physics, value of u, it means magnitude of u is always equal to v। इस तरह से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी प्लेन मिरर के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तब उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा मिरर के द्वारा बिहाइंड द मिरर, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज होगा। इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि अगर पॉइंट ए डैश बी डैश बी को मिला दें तो हम लोग को एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ जो क्वार्टर फॉर्म होगा उसका ईच एंगल राइट एंगल होगा। इन दिस केस ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल h1, A dash B dash represent height of image, it means represented by h2। It means किसी भी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह सेम साइज का होगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज होगा। और इमेज जो होगा लैटरली इन्वर्टेड होगा। सपोज दैट कोई बोर्ड है, उस पर आप लिखिए राम, एक ऑब्जेक्ट के रूप में राउंड लिख करके उसको प्लेन मिरर के सामने रखिएगा तो आपको जो इमेज इसका दिखलाई पड़ेगा वह इस तरह से दिखलाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है वह लैटरली इन्वर्टेड होता है। इसको लैटरली इन्वर्टेड का केस कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होगा इमेज का राइट साइड, और ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होगा इमेज का लेफ्ट साइड। दैट्स ऑल।